أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 17 پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی رکھی ہے۔ 17 پارے کا آغاز ہم سورۃ انبیاء سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اعلان ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراض اٹھایا کرتے تھے، سورت میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سبھی انسان تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اس حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم فہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے کام نہیں لیتے ہو؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے اور ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 5، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے کر آئے جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی۔ اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے اور کسی اور کو نہیں، آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ اور آیت نمبر 9، پھر ہم نے ان سے جو وعدے کیے تھے اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟
और हमने कितनी बस्तियों को पीस डाला जो जालिम थी, और उनके बाद हमने दूसरी नस्लें पैदा की। चुनाचे जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो वो एकदम वहां से भागने लगे। उनसे कहा गया कि भागो मत, वापस आ जाओ अपने इन्हीं मकानों में, इसी ऐशो इशरत के सामान की तरफ जिसके मजे तुम लूट रहे थे, शायद कि तुमसे कुछ पूछा जाए। वो कहने लगे कि हाय हमारी बदकिस्मती, सच्ची बात यह है कि हम लोग ही जालिम थे। इनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने उनको एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई राख बनाकर रख दिया, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम कोई खेल करना चाहते थे। अगर हमें कोई खेल बनाना होता तो हम खुद अपने पास से बना लेते, अगर हमें ऐसा करना ही होता। बल्कि हम तो हक बात को बातिल पर खींच मारते हैं, जो इसका सर तोड़ डालता है और वो एकदम मलिया मेट हो जाता है। और जो बातें तुम बना रहे हो उनकी वजह से खराबी तुम्हारी ही है। और आया नंबर 19, और आसमानों और जमीनों में जो लोग भी हैं अल्लाह के हैं, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो ना तो उसकी इबादत से सरकशी करते हैं और ना ही वो थकते हैं। वो रात दिन उसी की तस्बीह बयान करते रहते हैं और सुस्त भी नहीं पड़ते। क्या भला उन लोगों ने जमीन में से ऐसे खुदा बना रखे हैं जो नई जिंदगी देते हैं? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई दूसरे खुदा होते तो दोनों का निजाम दरम भरम हो जाता। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बनाते हैं। और आया नंबर 23, वो जो कुछ करता है उसको किसी का जवाबदेह नहीं होना पड़ता, और इन सबको जवाबदेही करनी होगी। भला क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना रखे हैं? ऐ पैगंबर इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील, ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहतें थी। लेकिन वाकया यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक बात को यकीन नहीं करते, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। और तुमसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजिल ना की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। आया नंबर 26, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो इनकी तमाम अगली पिछली बातों को जानता है और वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह की मर्जी हो, और वो इसके खौफ से सहमे रहते हैं। और अगर उनमें से कोई बिलफर्ज ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी माबूद हैं तो उसको हम जहन्नम की सजा देंगे। ऐसे जालिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया? और आया नंबर 30, और पानी से हर जानदार चीज पैदा की, क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? और हमने जमीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए हैं ताकि वो उन्हें लेकर हिलने ना पाए, और उसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बनाए हैं ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। और हमने आसमानों को एक महफूज छत बना दिया। और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद पैदा किए, सब किसी न किसी मदार में तैरते हैं। आया नंबर 34, और ए पैगंबर तुमसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर के लिए तय नहीं किया। चुनाचे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें आजमाने के लिए अच्छी और बुरी हर हाल तुम्हें मुब्तला करते हैं, और तुम सब हमारे पास ही लौट कर लाए जाओगे। और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो जब तुम्हें देखते हैं तो इसके सिवा उनका कोई काम नहीं होता कि वो तुम्हारा मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं क्या यही साहिब है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करते हैं? यानी ये कहते हैं कि उनको कोई हकीकत नहीं है। हालांकि इन काफरों की अपनी हालत ये है कि वो खुदाए रहमान ही का जिक्र करने से इनकार किए बैठे हैं। और आया नंबर 37, इंसान जल्दबाजी की खसलत लेकर पैदा हुआ है। मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, लिहाजा तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। और ये लोग मुसलमानों से कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये अजाब की धमकी कब पूरी होगी? काश इन काफरों को उस वक़्त की कुछ खबर लग जाती जब ये ना तो अपने चेहरों से आग को दूर कर सकेंगे और ना अपनी पुश्तों से, और ना उनको कोई मदद मुयस्सर आएगी, बल्कि वो आग उनके पास एकदम आ धमकेगी और उनके होशो हवास गुम कर दिए जाएंगे। फिर ना ये उसे पीछे हटा सकेंगे और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी।
और ए पैगंबर, तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था, फिर उनका मजाक बनाने वालों को उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। कह दो कि कौन है जो रात में और दिन में खुदाए रहमान के अजाब से तुम्हें बचाएगा, मगर वो हैं कि अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। आय नंबर 43, भला क्या उनके पास हमारे सिवा कोई ऐसे खुदा हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं? वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते और ना हमारे मुकाबले में कोई उनका साथ दे सकता है। बल्कि मामला ये है कि हमने उनको और उनके आबाओ इजाद को समाने ऐश अता किया है, यहाँ तक कि इसी हालत में उन पर एक उम्र गुजर गई। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि हम जमीन को उसके मुख्तलिफ किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या वो गालिब आ जाएंगे? कह दो कि मैं तो तुम्हें वही के जरिए डराता हूँ, लेकिन बहरे लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें डराया जाता है तो वो कोई पुकार नहीं सुनते, और अगर तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का एक झोंका भी उन्हें छू जाए तो वो ये कह उठेंगे कि हाय हमारी बदकिस्मती, वाकई हम लोग जालिम थे। और आया नंबर 47, और हम क्यामत के दिन ऐसे तराजू ला खड़े करेंगे जो सरापा इंसाफ होंगे, चुनाचे किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर कोई अमर राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे सामने ले आएंगे, और हिसाब लेने के लिए तो हम ही काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक व बातिल हदायत की एक रोशनी और उन मुत्तकी लोगों के लिए नसीहत का सामान अता किया था जो देखे बगैर अपने परवरदिगार से डरते हैं और जिनको क़यामत की घड़ी का खौफ लगा हुआ है। और अब ये कुरान जो बरकतों वाला पैगाम और नसीहत वाला है जो हमने नाजिल किया है, क्या फिर भी तुम इसे मानने से इनकार करते हो? आय नंबर 51, और इससे पहले हमने इब्राहिम को वो समझ बूझ अता की थी जो उनके लायक थी, और हम उन्हें खूब जानते थे। और वो वक्त याद करो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनके आगे तुम धरना दिए बैठे हो? वो बोले कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया था। इब्राहिम ने कहा कि हकीकत यह है कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में मुब्तला हो। उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे ये सचमुच की बात कर रहे हो या दिल लगी कर रहे हो? इब्राहिम ने कहा नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों का मालिक है, जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं। और लोगों, मैं इस बात पर गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक ऐसा काम करूंगा जिससे इनकी हकीकत खुल जाएगी। और आय नंबर 58, चुनाचे इब्राहिम ने उनके बड़े बड़े बुतों के सिवा सारे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो लोग इसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? वो तो कोई बहुत बड़ा जालिम है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में कुछ बातें बनाता है, उसे इब्राहिम कहते हैं। उन्होंने कहा तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाए। फिर जब इब्राहिम को लाया गया तो वो बोले कि इब्राहिम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, बल्कि ये हरकत उसके उस सबसे बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हो। आय नंबर 64 के इस पर वो लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे और अपने आप से कहने लगे कि सच्ची बात ही तो यही है कि तुम खुद ही जालिम हो। फिर उन्होंने अपने सर झुका लिए और कहा कि तुम्हें तो मालूम ही है कि ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भला बताओ कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है? तो है तुम पर, उन सब पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा छोड़कर जिसकी इबादत करते हो। भला क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? और आय नंबर 68, वो एक दूसरे से कहने लगे कि आग में जला दो इस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दम खम है। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम को आग में डाल दिया और हमने कहा कि ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने इब्राहिम के लिए बुराई का मंसूबा बनाया था, मगर नतीजा ये हुआ कि हमने उन्हीं को बुरी तरह से नाकाम कर दिया और हम उन्हें और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने दुनिया जहां के लोगों के लिए बरकतें रखी थी। हमने उनको इनाम के तौर पर इसहाक और यकूब अता किए और उनमें से हर एक को हमने नेक बनाया। और आया नंबर 73, और इन सब को हमने पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, और हमने वही के जरिए इन्हें नेकियां करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की ताकीद की थी, और वो हमारे इबादत गुजार थे।
اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعہ سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 78، اور داود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ساتھ لے کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تو تھے۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچا لے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ اور آیت نمبر 82، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تو تھے۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 84، تو پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور اس کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرح سے رحمت کا مظاہرہ ہو، تاکہ عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا۔ یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 88، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے۔ ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 91، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لوگوں، یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائے۔ اور آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے تو بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 101، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن لوگ،
उनको इस जहन्नम से दूर रखा जाएगा और उसकी सरसराहट भी नहीं सुन सकेंगे। वो हमेशा हमेशा अपनी मनपसंद चीज़ों के दरमियान रहेंगे। उनको वो क़यामत की सबसे बड़ी परेशानी गमगीन नहीं करेगी और फरिश्ते उनको ये कहकर इस्तकबाल करेंगे कि ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। उस दिन का ध्यान रखो जब हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज़ के तूर मार में तहरीरें लपेट दी जाती हैं। जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तदा की थी, इसी तरह हम उसे दोबारा भी पैदा कर देंगे। ये एक वादा है जिसे पूरा करने का हमने ज़िम्मा लिया है। हमें यकीनन ये काम करना है और हमने ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया था कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। और आया नंबर 106, बेशक इस कुरान में इबादत गुजार लोगों के लिए काफ़ी पैगाम है और ए पैगंबर हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर तो यही वही आती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, तो क्या तुम अतात कबूल करते हो? फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़ लें तो कह दो कि मैंने तो तुम्हें अललान खबरदार कर दिया है और मुझे ये मालूम नहीं है कि जिस सजा का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब है या दूर है। बेशक अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बुलंद आवाज से कही जाती हैं और वो बातें भी जानता है जो तुम छुपाते हो। और मैं नहीं जानता, शायद सजा में ये तखीर तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और किसी खास वक्त तक के लिए मजे करने का मौका देना है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, आखिरकार पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक का फैसला कर दीजिए और हमारा परवरदिगार तो बड़ी रहमत वाला है और जो बातें तुम बनाते हो उनके मुकाबले में उसी की मदद दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सूरत अंबिया खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल हज और थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि इस सूरत का कुछ हिस्सा मदनी है और कुछ मक्की है। मतलब यह है कि इस सूरत का नुज़ूल मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले शुरू हो चुका था और तकमील हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। इस सूरत में ये बताया गया कि हज की इबादत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुई और इसके बुनियादी अरकान क्या हैं। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरत हज है। मक्का मुकरमा में मुशरिकीन ने मुसलमानों को तरह तरह के जुल्म का निशाना बनाया था। वहां मुसलमानों को सब्र की तलकीन की जाती थी, लेकिन मदीना मुनव्वरा आने के बाद इसी सूरत में पहली बार मुसलमानों को कुफार के जुल्म सितम के मुकाबले में जहाद की इजाज़त दी गई और फरमाया गया कि जिन काफरों ने मुसलमानों पर जुल्म करके इन्हें अपने वतन और घर बार छोड़ने पर मजबूर किया है, अब मुसलमान इनके खिलाफ तलवार उठा सकते हैं। इस तरह जहाद को एक इबादत करार देकर ये खुशखबरी दी गई है कि न सिर्फ इसका सवाब आखिरत में मिलेगा बल्कि दुनिया में भी मुसलमानों को इंशाल्लाह फतह नसीब होगी। इसके अलावा इस्लाम के बुनियादी अकायद भी बयान किए गए हैं। चुनांचे सूरत का आगाज आखिरत के बयान से हुआ है जिसमें क़यामत का हौलनाक मंजर बड़े मौसर अंदाज से पेश किया गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हज मदनी सूरा है और इसमें 78 आयतें और 10 रुकू है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने परवरदिगार के गजब से डरो, यकीन जानो कि क़यामत का भंचाल बड़ी जबरदस्त चीज है। जिस दिन वो तुम्हें नजर आ जाएगा उस दिन हर दूध पिलाने वाली और हर हमल वाली अपने हमल को गिरा बैठेगी और लोग तुम्हें यूं नजर आएंगे कि वो नशे में बदहवास हैं। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में ना जाने झगड़ा करते हैं और उस सरकश शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं जिसके मुकद्दर में ये लिखा गया है कि जो कोई उसे दोस्त बनाएगा तो वो उसको गुमराह करके रखेगा और उसे भड़कती हुई अजाब की तरफ ले जाएगा। और आया नंबर 5 के ए लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने के बारे में कुछ शक है तो जरा सोचो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर एक जमे हुए खून से, फिर एक गोश्त के लोथड़े से जो कभी पूरा बन जाता था और कभी पूरा नहीं बनता, ताकि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत खोल कर बताएं। और हम तुम्हें माओ के पेट में जब तक चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर लाते हैं, फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर उम्र तक पहुंच जाओ। और तुम में से बास वो हैं जो पहले ही दुनिया से उठा लिए जाते हैं
اور तुम्ही में से बाज वो हैं जिनको बदतरीन उम्र यानी इंतहाई बुढ़ापे तक लौटा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो सब जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हो, तुम देखते हो कि जमीन मुरझाई हुई पड़ी है, फिर जब उस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आ जाती है, इसमें बढ़ोतरी होती है और वो हर किस्म के खुशनुमा चीजें उगाती है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही का वजूद बरहक है और वही बेजानों में जान डालता है और वो हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और इसलिए कि क़यामत की घड़ी तो आने ही वाली है जिसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए कि अल्लाह उन सब लोगों को दोबारा जिंदा करेगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, हालांकि उनके पास ना तो कोई इल्म है, ना हदायत है और ना कोई रोशनी देने वाली किताब है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो तकब्बर से अपना पहलू अकड़ाए हुए हैं ताकि दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। ऐसे ही शख्स के लिए दुनिया में भी रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे जलती हुई आग का मजा चखाएंगे कि ये सब कुछ तेरे उस करतूतों का बदला है जो तूने अपने हाथों से आगे भेजे हैं। और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म ढाने वाला नहीं है। और लोगों में से वो शख्स भी है जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है, चुनाचे अगर उसे दुनिया में कोई फायदा पहुंचता है तो वो उससे मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश आ पहुंचती है तो वो मुंह मोड़कर फिर कुफर की तरफ चल पड़ता है। ऐसे शख्स ने दुनिया भी खोई और आखिरत भी। यही तो खुला हुआ नुकसान है। वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करता है जो ना तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई फायदा दे सकते हैं। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। और आयत नंबर 13, ये ऐसे झूठे खुदाओं को पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा मददगार भी कितना बुरा है और ऐसा साथी भी कितना बुरा है। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह यकीनन उनको ऐसे बगात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यकीनन अल्लाह हर वो काम करता है जिसका इरादा कर लेता है। और आयत नंबर 15, जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इस पैगंबर की मदद नहीं करेगा तो वो आसमान तक एक रस्सी तान कर राब्ता काट डाले, फिर देखे कि क्या उसकी ये तदबीर उसकी झुंझुलाहट दूर कर सकती है। और हमने इस कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में इस तरह उतारा है, और अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। और आयत नंबर 17, बिलाशुबा मोमिन हो या यहूदी, साबी हो या नसरानी और मजूसी या वो जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया है, अल्लाह क़यामत के दिन इन सब के दरमियान फैसला कर देगा। आप यहाँ पे देखिए, मोमिन को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि हर एक का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन करेंगे। यकीनन अल्लाह हर चीज का गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो सब जमीन में है, नी सूरज, चांद, सितारे और पहाड़, दरख्त और जानवर, और बहुत से इंसान भी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील करे कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सकेगा। यकीनन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। और आयत नंबर 19, ये मोमिन और काफिर दो फरीक हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है। अब इसका फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा जिससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब कभी तकलीफ से तंग आकर वो इससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहां उनका लिबास भी रेशम का होगा। और आयत नंबर 24, और वजह यह है कि इन लोगों की रसाई पाकीज़ा बात यानी कलमा तौहीद तक हो गई थी और वो उस खुदा के रास्ते तक पहुंच गए थे जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। बेशक वो लोग सजा के लायक है जिन्होंने कुफर अपना लिया है और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें वहां के बशिंदे और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं। और जो शख्स उसमें जुल्म करके उल्टी राह निकालेगा, हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम को इस घर यानी खाना काबा की जगह बता दी थी और ये हदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराना और मेरे घर को इन लोगों के लिए पाक रखना।
جو यहाँ तवाफ करने आए और इबादत के लिए खड़े हों और रुकू और सजदा बजा लाएं। और आयत नंबर 27, और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास पैदल आए और दूर दराज के रास्तों से सफर करने वाली उन ऊंटनियों पर सवार होकर आए जो लंबे सफर से दुबली हो गई हो, ताकि वो उन फायद को आंखों से देखे जो उनके लिए रखे गए हैं, और मुकर्रर दिनों में पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। चुनाचे मुसलमानों, उन जानवरों में से खुद भी खाओ और तंग दस्त मोहताजों को भी खिलाओ। फिर हज करने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपना मैल कुचैल दूर करे और अपनी मन्नतें पूरी करे और इस बैत अतीक का तवाफ करे। और आयत नंबर 30, ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स उन चीजों की ताजीम करेगा जिसको अल्लाह ने हुर्मत दी है, तो उसके हक में ये अमल उसके परवरदिगार के नजदीक बहुत बेहतर है। सारे मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उन जानवरों के जिसकी तफसील तुम्हें पढ़कर सुना दी गई है। लिहाजा बुतों की गंदगी से और झूठी बात से इस तरह बच कर रहो कि तुम यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ रुख किए हुए हो, उसी के साथ किसी को शिर्क मत बनाना। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर या तो परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या हवा उसे कहीं दूर दराज की जगह ला फेंके। और आया नंबर 32, ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताजीम करे तो ये बात दिलों के तकवा से हासिल होती है। तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक इन जानवरों से फायदा हासिल करने का हक है, फिर उनके हलाल होने की मंजिल उस कदीम घर यानी खाना काबा के आसपास है। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गर्ज के लिए मुकर्रर की है कि वो उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं। लिहाजा तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, चुनाचे तुम उसी की फर्माबरदारी करो और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। और आय नंबर 35, जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिलों पर रोब तारी हो जाता है, और जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर मुसीबत पर सब्र करने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंट और गाय को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर में शुमार किया है, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है। चुनाचे जब वो एक कतार में खड़े हों, उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब ज़बा होकर उनके पहलू जमीन पर गिर जाएं तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और उन मोहताजों को भी खिलाओ जो सब्र से बैठे हुए हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत जाहिर करे। और इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिया है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह को ना तो इनका गोश्त पहुंचता है और ना ही उनका खून, लेकिन उसके पास तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने ये जानवर इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिए हैं ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की तकबीर करो कि उसने तुम्हें हदायत अता की है। और जो लोग खुश असलूबी से नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। और आय नंबर 38, बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा करेगा जो ईमान ले आए हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी दगाबाज ना शुक्रिया को पसंद नहीं करता। जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो अपने दिफा में लड़े क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है, और यकीन रखो कि अल्लाह उनको फतह दिलाने में पूरी तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों के एक गिरोह के शर को दूसरे के जरिए दफा ना करता रहता तो खानगाहें और कलीसा और इबादत गाहें और मस्जिदें जिसमें अल्लाह की कसरत से जिक्र किया जाता है सब मिस्मार कर दी जाती। और अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और बड़े इक़्तिदार वाला है। ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शे तो वो नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और लोगों को नेकी की ताकीद करे और बुराई से रोके, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्जे में है। और आया नंबर 42, और ए पैगंबर अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं। इब्राहिम की कौम और लूत की कौम और मदियन के लोग भी और मूसा को भी झुटलाया गया था। चुनाचे इन काफरों को मैंने कुछ ढील दी है, फिर इन्हें पकड़ भी ले लिया। अब देख लो कि मेरी पकड़ कैसी है। गर्ज कितनी बस्तियां थी जिनको हमने उस वक़्त हलाक किया जब वो जुल्म कर रही थी, चुनाचे वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं। और कितने ही कुएं हैं जो अब बेकार हुए पड़े हैं, और कितने बड़े महल जो खंडर बन चुके हैं। तो क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं हैं जिससे इन्हें वो दिल हासिल हो जो उन्हें समझ दे, या ऐसे कान हासिल हो जिससे वो सुन सके।
हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर होते हैं। और आय नंबर 47, और ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि अल्लाह अपने वादे की हरगिज खिलाफवर्जी नहीं करेगा। और यकीन जानो कि तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल की तरह का होता है। और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें हमने मोहलत दी थी और वो जुल्म करती रही, फिर हमने उन्हें पकड़ में ले लिया और सबको आखिरकार तो मेरे पास ही लौटना होगा। और आया नंबर 49, ए पैगंबर कह दो कि ए लोगों, मैं तो तुम्हें वजाहत के साथ खबरदार करने वाला हूँ। फिर जो लोग ईमान ले आए हैं और नेक अमल करने लगे हैं तो उनके लिए मगफरत है और बाइज्जत रिस्क है। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को नीचे दिखाने के लिए दौड़ धूप की है तो वो दोजक के बासी हैं। और ए पैगंबर, तुमसे पहले हमने जब भी कोई रसूल या नबी भेजा तो इसके साथ ये वाकया जरूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने वालों के साथ ही कुफार के दिल में कोई रुकावट डाल दी। फिर जो रुकावट शैतान डालता है अल्लाह से दूर कर देता है, फिर अपनी आयतों को ज्यादा मजबूत कर देता है। और अल्लाह बड़े इल्म का और बड़ी हिकमत का मालिक है। और आया नंबर 53, ये शैतान ने रुकावट इसलिए डाली ताकि जो रुकावट शैतान ने डाली थी अल्लाह उसे इन लोगों के लिए फितना बना दे जिनके दिलों में रोग है और जिनके दिल सख्त हैं। और यकीन जानो कि ये जालिम लोग मुखालफत में बहुत दूर आगे निकल गए हैं। और उस रुकावट को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए दूर किया ताकि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान ले कि यही कलाम बरहक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है। फिर वो इस पर ईमान लाए और उनके दिल इसके आगे झुक जाए। और यकीन रखो कि अल्लाह ईमान वालों को सीधे रास्ते की हदायत देने वाला है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो इस कलाम की तरफ बराबर शक में पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उन पर अचानक क्यामत आ जाए या ऐसे दिन का अजाब इन तक आ पहुंचे जो उनके लिए किसी भलाई को जन्म देने की सलाहियत से खाली होगा। आया नंबर 56, के बादशाही तो उस दिन अल्लाह की होगी, वो उस दिन उनके दरमियान फैसला करेगा। चुनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो नेमतों के बागात में होंगे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है और हमारी आयतों को झुटलाया है तो ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है फिर कत्ल कर दिए गए या उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह उन्हें जरूर अच्छा रिस्क देगा। और यकीन रखो कि अल्लाह ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वो उन्हें जरूर ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। और अल्लाह यकीनन हर बात जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है। ये बात तो तय है। और आगे ये भी सुन लो कि जिस शख्स ने किसी को बदले में इतनी तकलीफ पहुंचाई जितनी उसको पहुंचाई गई थी, उसके बाद फिर उसे ज्यादती की गई तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। यकीन रखो कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। आया नंबर 61, ये इसलिए है कि अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। और इसलिए कि अल्लाह हर बात को सुनता और हर चीज को देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और ये लोग उसे छोड़कर जिन चीजों की इबादत करते हैं वो सब बातिल है। और अल्लाह ही वो है जिसकी शान भी ऊंची है और रुतबा भी बुलंद है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा जिससे जमीन सरसब्ज हो जाती है? हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान और हर बात से बखबर है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। और यकीन रखो कि अल्लाह ही वो जात है जो सबसे बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ है। आया नंबर 65, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन की सारी चीजें तुम्हारे काम में लगा दी हैं और वो कश्तियां भी जो उसके हुक्म से समंदर में चलती हैं? उसने आसमान को इस तरह थाम रखा है कि वो उसकी इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों के साथ शफकत का बर्ताव करने वाला बड़ा मेहरबान है। और वही है जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। वाकई इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर उम्मत के लिए इबादत का एक तरीका मुकर्रर किया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। लिहाजा ए पैगंबर, लोगों को तुमसे इस मामले में झगड़ा नहीं करना चाहिए और तुम अपने परवरदिगार की तरफ दावत देते रहो। तुम यकीनन सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो
اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 69، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے ساتھ صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 83، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چھین کر چلی بھی جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بیکار، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بیکار ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر جانی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قدرت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اب اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحج ختم ہوتی ہے، اور ہمارا 17 پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگیے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا پاک پروردگار، تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔